Very good evening to all of you. Today we are going to start the new topic, and the previous class we have find the electric field due to straight current conductor on a given point. Okay, and due to a circular loop on its center. Two topics were covered in the previous class, and in today's class we are going to discuss the new topic, and the today's topic is magnetic field due to a circular loop on its axis. So basically today we are going to find the magnetic field due to a circular loop on its axis. So that is a very important derivation. So let's go for the derivation. Now the problem is that it will be very difficult for us to visualize the direction of magnetic field due to a circular loop. But first of all, let's write the topic: magnetic field due to circular loop. Magnetic field due to circular loop on its axis. इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कुलर लूप के। तो ये हम लोग एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं। दिस इज ए सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप हमारा स्टेप्स है, और इस सर्कुलर लूप की वजह से हमको किसी गिवन पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, इस गिवन पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड द magnetic field due to this loop, and this should be the direction of current in the loop. Okay, so first of all we have to find the magnetic field over here. तो and we have to also use the Biot-Savart law. तो Biot-Savart law यूज करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हमको एक करंट एलिमेंट चाहिए। ये करंट अगर हमारा डायरेक्शन है और इसका हमको रेडियस ले लेते हैं, लेट्स द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप बी एक्स. Radius of the circular loop be x, and distance of the point from the center of the loop is that should be r. Now we have to find the magnetic field at point P. So for that we have to consider a current element dl. करंट एलिमेंट dl हमको कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग दो करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक ऊपर भी रहते हैं, एक नीचे भी रहते हैं, और इन दोनों पॉइंट की वजह से इस पॉइंट P पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश करते हैं। Now whenever we have to find the magnetic field to the circular loop at any given point, circular loop से अगर हमको magnetic field फाइंड करना है किसी पॉइंट P पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सर्कुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। दिस टू बी करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। सर्कुलर लूप ऐसे है, ये हमारा करंट एलिमेंट है, तो ये थंब करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, and to find the magnetic field at point P, we are going to use the Biot-Savart law, that is dV equal to mu naught I dl sin theta by r 4 pi by r square. Now the magnetic field, direction of magnetic field can also be found by using the formula I into dl cross r. Basically it is dl cross r by r square. The direction of dl cross r is going to give the magnitude of magnetic field at a given point. So let us try to find the magnetic field direction at point P here. So अगर ये हमारा लूप है, let's take this length to be dl. ये dl हमारा लेंथ ले लेते हैं, और we have to find the magnetic field over point. हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ना। So we going to get dl cross E. dl लेंथ हो गया क्रॉस E, हमको इस पॉइंट पे dl क्रॉस r, हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर इज गोइंग टू लाइक दिस, dl क्रॉस r. दिस इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट विल बी गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट. So that should be the direction of magnetic field due to this length, and similarly we can find the direction of magnetic field due to this length like this.
सो दीज 2 पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस पे परपेंडिकुलर होगा, आर पे परपेंडिकुलर होगा और ये भी आर पे परपेंडिकुलर होगा डीएल क्रॉस आर से। ऑब्वियसली डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कौन, तो मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लेट्स दिस एंगल टू बी फाई and this angle to be also phi because they are the two symmetrical positions, and this is, let's इसको मैं, ये phi है तो ये that should be equal to 90 minus phi and that should be also equal to 90 minus phi, okay, and let's this to be, ये बाहर का हो गया तो ये 90 minus phi है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये phi हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी phi हो जाएगा। So these are the angles phi, 90 minus phi, phi, phi. Okay. Now we have to find the magnetic field at point P. We have to find the magnetic field at point P. So to find the magnetic field at point P, let's go for the derivation. Let's go for the derivation. So let's start the topic. Now we have to find the magnetic field. We have to find the magnetic field at point P. So let's use the Biot-Savart law. So using the Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field dB, that should be equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square. Here let's name these points. ये P है, इसको नाम देते हैं O, और इन दोनों पॉइंट्स को A और B नाम दे देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से मैं निकाल रहा हूँ, तो लेट्स बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई ए पी स्क्वायर, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई ए पी स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल को डी रहने देता हूँ, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो ये मेरा सर्कुलर लूप है, ठीक, ये मेरा सर्कुलर लूप है, ये मेरा लेंथ है, इस लेंथ से इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है डीएल और ये हमारा लेंथ है, तो करंट एलिमेंट और लेंथ के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दिस इज नॉट द, ये हमारा नीचे वाला एंगल नहीं है, ये लाइन है तो ये नीचे वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है करंट एलिमेंट के साथ का एंगल। That should be going to be a 90 degree value, so that should be, I am going to write sin 90. Okay, तो ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू डी बी, एंड डी बी इज इक्वल टू आ गया हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू मेरा आ गया, ठीक है, बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी बी की वैल्यू हो गया। द व्हाट शुड बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डी बी है, तो डी बी को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये डी बी है, तो ये डी बी का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा डी बी साइन फाई, और इस डी बी का एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा अगेन डी बी साइन फाई, ठीक, और इसका एक कॉम्पोनेंट हो जाएगा डी बी कॉस फाई, और नीचे का कॉम्पोनेंट हो जाएगा अगेन डी बी कॉस फाई। सो व्हाट आई कैन सी दैट द y component of the magnetic field get cancelled out, so the net magnetic field is here simply तो dB sin phi। अब 2 dB sin phi क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने 2 लेंथ लिया तो 2 dB sin phi आया, 3 लेंथ था तो 3 आया था,
अगर मैं जब इसको पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, इसलिए हमको 2 dB साइन फाई लिखने की जरूरत नहीं है, एंड इट विल बी आउटवर्ड। एक तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड dB साइन फाई होगा और ये किधर की तरफ रहेगा, तो ये बाहर की तरफ भी होगा, ये भी फिक्स है। So we can find the magnetic field, the net magnetic field is going to be dB sin phi, and that the magnetic field is going to be in outward direction. So the net magnetic field should be equal to dB sin phi and it will be in outward direction, बाहर की तरफ होगा। So the dB equal to mu naught by 4 pi ideal r square plus x square. So net magnetic field, how can to find the net magnetic field? Net magnetic field B, that should be the integration of dB sin phi. dB sin phi को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो कहाँ से, अगर मैं इस लेंथ से चुनता हूँ और वापस इस लेंथ तक आना है तो ये मेरा इंटीग्रेशन जाएगा 0 से लेके 2 पाई x तक, 0 से लेके 2 पाई x तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। So then I am going to get the dB net magnetic field, that is B। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं भाई। So let's try to integrate this equation to get the full value, full magnetic field. So the net magnetic field B is equal to integration of dB sin phi from 0 to 2 pi x, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो dB का वैल्यू था mu naught by 4 pi आई dl बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिमिट 0 से 2 पाई x इंटू साइन फाई। साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साइन फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू x बाई हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1/2, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये मेरा हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाहर ले लेता हूँ, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज। ठीक, एंड दैट शुड बी इक्वल टू x इंटू डी एल। ठीक है, ये मेरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। नाउ we have to integrate it with the limit, and the limit is from 0 to 2 pi x। कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसको हम लोगों ने बाहर ऑलरेडी कर लिया। Now let's integrate the term dl from limit 0 to 2 pi x। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 डी एल का इंटीग्रेशन एल, लिमिट 0 से लेके 2 पाई एक्स। सो दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 और एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई एक्स। ठीक है, सो द नेट इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई आई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। That is the net magnetic field on the axis of the current carrying circular loop. Now, अगर मैं पाई को काटना चाहूँ तो पाई को काट सकता हूँ, बट म्यू नॉट बाई 4 पाई का कॉन्स्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है, इसलिए मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई को एक जगह पर रख रहा हूँ
बाकी वैल्यू को बस चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द further derivation of this formula. Now, if the circular loop has n number of turns, circular loop has n number of turns, तो एक टर्न की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो n नंबर की वजह से क्या हो जाएगा, तो n नंबर की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2 पाई एन आई एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. If the loop has the n number of turns, so the magnetic field is going to be mu naught 2 pi n I x square by 4 pi r square plus x square to the power 3/2. Now, what will happen if the point is on the center of loop? अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो यहाँ था, इसको हम खिसका के वापस सेंटर पर पहुँचा दे तो if the point is moved to the center of the loop, what is going to happen in that case? अगर पॉइंट को सेंटर ऑफ द लूप पे पहुंचा दूं तो मैं क्या होगा उस केस में, तो उस केस में मैं लिख सकता हूं if the point is on the center of the loop, अगर पॉइंट को ही मैं सेंटर ऑफ द लूप पहुंचा दूंगा, in that case r is going to be equal to 0. r तो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, in that case the formula is going to be converted into, ये मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, in that case the b should be equal to mu naught 2 pi आई एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स एक्स को n नहीं ले रहे हैं, बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. पाई पाई काट देते हैं, 2 से 2 कट जाते हैं, तो हो गया म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 यानी एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया हमारा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2x। तो जब तक मन करेगा हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारा मन नहीं करेगा फॉर्मूला, मीन्स जब तक ये तो एक्सिस का फॉर्मूला हो गया, अब ये एक्सिस का यूज, ये फॉर्मूला का यूज करके अगर हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए सिंपली आर के वैल्यू 0 कर देंगे, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पहुँच जाएगा, सेंटर पे, और ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स सेंटर, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी एप्लीकेबल होगा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, काफ़ी एप्लीकेबल फॉर्मूला है। ये डेरिवेशन एग्जाम्स में आता है, कई बार एग्जाम्स में, सीबीएसई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा बन जा रहा है। जबकि वो जो सेंटर ऑफ द लूप था वो इसको ऐसे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, वैसे भी डिराइव कर सकते हैं, और भी तरीके हैं डिराइव करने के, एम्पिरिकल सर्किट लॉ का भी यूज कर सकते हैं। We will use that those formula also। तो ये हमारे जो टॉपिक्स थे ये बेसिकली हमारा एप्लीकेशन थे बायोट-सैवर्ट लॉ के। बायोट-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन हम लोगों ने 3 जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया। अब हम लोग आगे जाने वाले हैं, हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ करेंगे, लेकिन बिना एम्पियर सर्किट लॉ पे जाए उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। सो लेट्स गो फॉर द some questions based on these topics। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम लोग। there is
conductor like this. ओके, ये करंट कंडक्टर है हमारा, करंट इज गोइंग लाइक दिस. Now this is the center. Here I have to find the magnetic field over here. This length is given as r, and this is also r, and this is also r, and this is also r. Now I can join this. तो ये एक आर्क हो गया, and magnetic field due to arc, current carrying arc इक्वल टू क्या था, तो B इक्वल टू था म्यू नॉट I बाई 2r इंटू थीटा बाई 360. तो करंट का हम लोग डायरेक्शन देख लेते हैं सब लूप में कैसा है. ठीक. नाउ ये जो पॉइंट्स हैं इसके भी एक्सिस पे है, इसके भी एक्सिस पे, तो ये तो करंट हमको, ये तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा. तो ये डिफरेंट पार्ट्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं. इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं और इसको 4 ले लेते हैं. चारों पार्ट्स का हम लोग डिफरेंट नाम ले लिए, 1, 2, 3 एंड 4. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, I have to find the magnetic field at the center over here. ठीक है, तो कुछ के लिए क्या करते हैं, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो ये करंट हो गया, ये करंट तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी इसकी वजह से क्या होगा, तो आई कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1. तो B1 इसका नाम लेते हैं, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आउटवर्ड, दैट विल बी आउटवर्ड. तो B1 इक्वल टू क्या है, तो म्यू नॉट I बाई सिंपली 2r इंटू थीटा बाई 360 सिंपली, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये आउटवर्ड होगा. ठीक. नाउ सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 2, what should be the magnetic field to loop 2? So let's find the magnetic field to loop 2, that is equal to B2, and B2 equal to, again that should be equal to म्यू नॉट I by 2, R के वैल्यू हो जाएगा 2r इंटू थीटा बाई 360. अब ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा हमारा, ये रहा वायर, इसके वजह से हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए. जब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो ये वायर इधर है, ये वायर इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से बाहर की तरफ था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थम करंट के डायरेक्शन में रहेगा, कंडक्टर के डायरेक्शन, तो ये कंडक्टर के डायरेक्शन में रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गया. तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये रहेगा किधर की तरफ, तो ये रहेगा अंदर की तरफ. तो 2 हो गया. सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 3, थर्ड लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो B3 इक्वल टू म्यू नॉट I, करंट आई जा रहा है, बाई 2 इंटू 3r इंटू थीटा बाई 360. ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये हो गया r प्लस r प्लस r, एंगल तो थीटा ही है,
मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, तो ये रहा थंब, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ये किधर की तरफ रहेगा, तो आउटवर्ड। ठीक, तो 3 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 4, फोर्थ लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू B4 एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 इंटू 4R थीटा बाई 360। ये किधर रहेगा, तो ये रहेगा अंदर की तरफ। तो चारों लूप की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो सीधे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबकी वजह से। तो जो आउटवर्ड है उसको हम प्लस ले लेते हैं और इनवर्ड को माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1 बाहर की तरफ प्लस B3 बाहर की तरफ माइनस B2 अंदर की तरफ माइनस B4 अंदर की तरफ। तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो B1 का वैल्यू हमारा हो गया म्यू नॉट I बाई 2R इंटू थीटा बाई 360 प्लस म्यू नॉट I बाई 3R 2 इंटू 3R इंटू थीटा बाई 360 माइनस म्यू नॉट I बाई 2 इंटू 2R इंटू थीटा बाई 360 माइनस म्यू नॉट I बाई 2 इंटू 4R इंटू थीटा बाई 360। ठीक, नाउ सम कॉन्स्टेंट्स को हम लोग कॉमन लेते हैं, तो म्यू नॉट I बाई 2R इंटू थीटा बाई 360 कॉमन ले लेते हैं। म्यू नॉट I थीटा बाई 2R इंटू 360 कॉमन लेते हैं, हो गया 1 प्लस 2R यानी 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/4। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ रहा है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I थीटा बाई 2R इंटू 360। लेट्स राइट द वैल्यूज। तो ये एलसीएम हो गया मेरा 12, तो क्या 12 प्लस 4 माइनस 6 माइनस 3। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट I इंटू थीटा बाई 2R इंटू 360। ये एक टर्म है, याद रखेंगे। 5 या 16, 16 माइनस 9 7/12। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड दैट शुड बी इक्वल टू इनटू टेस्ला। ये टेस्ला में हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग फाइंड करते हैं ड्यू टू द सर्कुलर लूप, वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, in that case we have to take into the mind that we must need to find the direction of magnetic field। हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना ही होगा, तभी जाके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड if we do not know the direction of magnetic field. So we must know the direction of magnetic field. For that we know the rules, that is left hand rule, right hand rule, whatever rule we are going to say, that all the rules we must be knowing, then and then only we can find the direction of magnetic field. Okay, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं। कल के क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। फिर हम लोग अगले क्लासेस में आगे एम्पीयर सर्किट लॉ यूज करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही पे रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सोलेनॉइड एंड द टोरॉइड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो सी यू टुमारो विद द न्यूमेरिकल्स।